Dear students, welcome to RP Educare official YouTube channel. This is second lecture of electrical measurements and instrumentation subject. In the previous lecture, we already have discussed about what is electrical measurements. Now, in this lecture, we will study about what is instrumentation and what is the characteristics of instruments. So, let's start. First of all, what is instrumentation? The process or technology of using instruments to measure and control the physical and chemical properties of any material is called instrumentation. मीन्स किसी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मेजरमेंट या कंट्रोलिंग किया जाए विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, then that is known as instrumentation. Okay, now characteristics of instruments. There are two types of characteristics of instrument. First is static and second is dynamic. Okay, so first one is static characteristics. The static characteristics are defined for the instruments which measure quantities which don't vary with time. Means that किसी instruments के through अगर किसी quantities का measurement किया जा रहा है और उसकी value time के साथ vary नहीं कर रही है, then that is static characteristics. Okay, now here some main static characteristics are given like accuracy, precision, resolution or discrimination, sensitivity, reproducibility, drift, static error, dead zone, threshold, linearity, stability, range or span, tolerance, bias and hysteresis. Now I will explain these all one by one. First is accuracy. Now what is accuracy? In a simple word we can say that the deviation of measured value from true value. Means किसी डिवाइस की रेटिंग की हुई है कि इसका आउटपुट 5 वोल्ट मिलेगा एंड आफ्टर मेजरमेंट वैल्यू अगर आ रहा है 4.9 और 4.8, then this value is close to 5 volt. This is accuracy. Here first point is it is the degree of closeness with which an instrument reading approaches the true value of quantity being measured. मीन्स किसी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग करने पे ट्रू वैल्यू के क्लोजर वैल्यू अगर आ रही है रीडिंग की वैल्यू, देन दैट इज एक्यूरेसी. और इन अ सेकेंड पॉइंट वी कैन ऑल्सो से एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इंडिकेट्स द नियरनेस टू द एक्चुअल और ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी. मीन्स एक्चुअल वैल्यू 5 वोल्ट अगर है तो 5 वोल्ट के करीब वैल्यू 4.9 या 4.8 वैल्यू जो होगी ये वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के करीब आ रही है, देन दैट इज accuracy. Now here third point is accuracy is equal to the difference between true value and measured value. Now what is true value and what is measured value? True value is exact value of a variable. मीन्स किसी डिवाइस की मैन्युफैक्चर्ड के थ्रू अगर रेटिंग कर दी गई है कि इसका 5 वोल्ट आउटपुट है, देन दैट इज स्टैंडर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू. एंड नाउ व्हाट इज मेजर्ड वैल्यू? मेजर्ड वैल्यू इज वैल्यू ऑफ वेरिएबल as indicated by measurement system. Means measured value is reading value. और simply we can say that जो हम मेजरमेंट करेंगे मीन्स ह्यूमन के थ्रू जो मेजरमेंट होगा, मैनुअली मेजरमेंट जो होगा, दैट मेजरमेंट इज नोन एज मेजर्ड वैल्यू. हियर ट्रू वैल्यू इज फिक्स वैल्यू बिकॉज ट्रू वैल्यू को आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरर ने रेट किया है एंड मेजर्ड वैल्यू इज मेजर्ड बाई वी ऑल. मीन्स हम लोग जो मेजरमेंट करके किसी इंस्ट्रूमेंट्स का किसी डिवाइस का रीडिंग निकालते हैं दैट इज नोन एज मेजर्ड वैल्यू. इन कंक्लूजन वी कैन से दैट एक्यूरेसी इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू. मीन्स ट्रू वैल्यू के जितना करीब मेजर्ड वैल्यू आएगी उतना ही वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट कही जाएगी. नाउ सेकंड इज प्रेसिजन. It is a measure of consistency or repeatability, that is successive reading don't differ. Means that precision is the difference between two or more measured value. Means यहाँ कोई भी true value नहीं होती है, only measured values का measured value से comparison करते हैं. अगर first time में reading लिया गया 5.6 आया, next time में reading लिया गया 5.4 आया एंड नेक्स्ट टाइम फिर से रीडिंग लिया गया 5.3 आया. फर्स्ट टाइम में जो रीडिंग मिला, सेकंड टाइम में रीडिंग मिला, थर्ड टाइम में जो रीडिंग मिला, इन सारे रीडिंग्स का डिफरेंस अगर निकालेंगे और ये डिफरेंस जितना ज़्यादा क्लोजर होगा उतना ही ज़्यादा वैल्यू प्रिसाइज कही जाएगी, उतनी ही ज़्यादा वैल्यू प्रिसाइज होगी. इन द सेकेंड पॉइंट प्रिसीजन इज डिफाइंड एज द कैपेबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू शो द सेम रीडिंग व्हेन यूज्ड ईच टाइम. मीन्स दैट फर्स्ट पर्सन ने अगर मेजरमेंट किया तो वैल्यू आया 4.4, सेकेंड पर्सन ने मेजरमेंट किया वैल्यू आया 4.3, नाउ थर्ड पर्सन ने मेजरमेंट किया तो वैल्यू आया 4.4. सो फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन की वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज मानी जाएगी बिकॉज
ये रिपीट कर रहा है वैल्यू। नाउ इन द थर्ड पॉइंट वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, मीन्स प्रिसीजन इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन टू मेजर्ड वैल्यू एंड हियर इज वन कंडीशन, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज प्रिसाइज may not be necessarily accurate. ओके, मीन्स कोई इंस्ट्रूमेंट अगर प्रिसाइज है तो उसे एक्यूरेट नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज प्रिसीजन इज द डिफरेंस बिटवीन टू और मोर मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्यूरेसी इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू. नाउ वी कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम दैट व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज प्रिसीजन. इन सब डायग्राम में सेंटर के आसपास जो येलो कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, ये येलो डॉट्स जो हैं मेजर्ड वैल्यूज हैं, और जो सेंटर पॉइंट पे है एकदम सेंटर पॉइंट पे वो रेड कलर का वो है एक्यूरेट वैल्यू, मीन्स स्टैंडर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू या फिर बोल सकते हैं एक्चुअल वैल्यू. सो मैंने बोला था अभी एक्यूरेसी इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू एंड प्रिसीजन इज द डिफरेंस बिटवीन टू और मोर मेजर्ड वैल्यू. मीन्स अगर एक्यूरेसी की बात करें तो अगर स्टैंडर्ड वैल्यू मीन्स ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू के करीब अगर मेजर्ड वैल्यू आ रहा है तो एक्यूरेसी कहलाएगा. एंड अगर मेजर्ड वैल्यूज हैं और सारे मेजर्ड वैल्यूज एक दूसरे के बहुत ही करीब हैं, देन दैट इज नोन एज प्रिसीजन. सो यहाँ येलो डॉट्स हैं और येलो डॉट्स अभी बोला हूँ कि मेजर्ड वैल्यूज हैं, और मेजर्ड वैल्यूज अगर पास पास रहेंगे मतलब मेजर्ड वैल्यूज जितना करीब रहेंगे उतनी ज़्यादा वैल्यू प्रिसाइज होगी. मीन्स अगर मेजर्ड वैल्यू पास पास हैं इसलिए प्रिसीजन यहाँ पे यस लिखा है, मतलब ये प्रिसाइज हैं. एंड यहाँ येलो डॉट्स के जस्ट नीचे रेड है, रेड कलर का डॉट है, और रेड कलर का डॉट दिखा रहा है स्टैंडर्ड वैल्यू मीन्स ट्रू वैल्यू. तो ट्रू वैल्यू के भी पास में है, मतलब ट्रू वैल्यू के भी पास में है सारे मेजर्ड वैल्यूज. तो अगर डिफरेंस निकालेंगे ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यूज तो वो भी डिफरेंस बहुत कम आएगा. सो ये एक्यूरेसी भी अच्छी है, मतलब एक्यूरेट वैल्यू के जस्ट पास में है, देन दैट इज एक्यूरेट वैल्यू. सो एक्यूरेसी में भी यस लगा है. एंड इन द सेकेंड डायग्राम यहाँ येलो डॉट्स जो हैं मेजर्ड वैल्यूज हैं और सेंटर पे है ट्रू वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू. तो ट्रू वैल्यू के पास पास में है मेजर्ड वैल्यूज बट आपस में दूर दूर हैं. तो ये आपस में दूर दूर हैं तो ये प्रिसाइज नहीं है, प्रिसाइज नहीं बोले जाएंगे. बट ये सारे मेजर्ड वैल्यूज मीन्स येलो डॉट्स रेड कलर के डॉट के जस्ट पास में हैं. सो दिस इज एक्यूरेसी. नाउ इन द थर्ड डायग्राम यहाँ सेंटर पॉइंट पे ट्रू वैल्यू है जो कि फिक्स होता है, फिक्स वैल्यू. सब डायग्राम में फिक्स था वो सेंटर पॉइंट पे, जैसा पहले भी बता चुका हूँ मैं, ट्रू वैल्यू फिक्स होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू होता है. एंड ये येलो डॉट्स जो हैं ये मेजर्ड वैल्यूज हैं. यहाँ मेजर्ड वैल्यूज तो पास पास हैं बट ये ट्रू वैल्यू से सेंटर पॉइंट से काफ़ी दूर हैं, इसलिए ये एक्यूरेट नहीं होंगे, मतलब एक्यूरेसी नहीं होगी, ये नो है. बट ये येलो डॉट्स आस पास हैं, मतलब मेजर्ड वैल्यूज पास पास में हैं, इसलिए दिस इज प्रिसाइज वैल्यू. ओके, नाउ इन द फोर्थ फिगर में यहाँ येलो डॉट्स भी दूर दूर हैं, येलो डॉट्स काफ़ी दूर दूर हैं, एंड रेड डॉट से भी मतलब सेंटर पॉइंट पे जो डॉट है इससे भी दूर दूर हैं येलो डॉट्स. मीन्स हियर नॉट इज एक्यूरेसी एंड नॉट इज प्रिसीजन. नाउ थर्ड इज रिजोल्यूशन और डिस्क्रिमिनेशन. नाउ व्हाट इज रिजोल्यूशन और डिस्क्रिमिनेशन? द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट इन द मेजर्ड वैल्यू दैट कैन बी डिटेक्टेड विद सर्टेनिटी बाय द इंस्ट्रूमेंट्स. वह छोटे से छोटी स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट दैट कैन बी डिटेक्टेड जो कि डिटेक्ट हो सके विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दैट वैल्यू इज नोन एज रिजोल्यूशन और डिस्क्रिमिनेशन. नाउ नेक्स्ट सेंसिटिविटी. नाउ व्हाट इज सेंसिटिविटी? Sensitivity is defined as the ratio of change in output or response towards the change in input at a steady state condition. At a steady state condition. Now, what is the formula of sensitivity? Sensitivity K is equal to delta V naught upon में delta Vi. Here delta V naught is change in output and delta Vi is change in input. मीन्स अगर डायग्राम के थ्रू समझना चाहें तो एक्स एक्सिस पे इनपुट वोल्टेज है एंड वाई एक्सिस पे आउटपुट वोल्टेज. तो इनपुट वोल्टेज में चेंजिंग अगर हुआ डेल्टा वी आई, सो इस पॉइंट से अगर हम ग्राफ को ऊपर की तरफ देख लेते हैं तो आउटपुट वोल्टेज में भी चेंजिंग हो रहा है डेल्टा वी नॉट, एंड द रेशियो ऑफ डेल्टा वी नॉट एंड डेल्टा वी आई इज नोन एज सेंसिटिविटी. नाउ नेक्स्ट reproducibility. Now what is reproducibility? Reproducibility is defined as the degree of closeness by which a given value can be repeatedly measured. Or in a second point, perfect reproducibility signifies that the given readings that are taken for an input don't vary with time. Means अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट हो रहा है और मेजरमेंट के बाद अगर वैल्यू जो आ रही है वैल्यू कंटिन्यू सेम आए, अगर वैल्यू में ज़्यादा चेंजिंग नहीं आ रहा है, वैल्यू बार बार रिपीट कर रही है, दैट इज नोन एज रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिपीटेबिलिटी. नाउ ड्रिफ्ट. Now what is drift? The drift is defined as the gradual shift
in the indication over a period of time where the input variable does not change. मीन्स अगर किसी भी डिवाइस में इनपुट वोल्टेज अगर हम चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उस डिवाइस का आउटपुट चेंज हो रहा है, then that is known as drift. And second point is drift may be caused because of environmental factors like stray electric fields, stray magnetic fields, thermal EMF. Here EMF is electromotive force. Now next is change in temperature or mechanical vibrations, etc. These all are the causes of drift. Okay, now drift is classified into three categories: zero drift, span or sensitivity drift, and third is zonal drift. फिर से देख लीजिए, किसी भी डिवाइस का अगर इनपुट वोल्टेज फिक्स है और उसके बावजूद भी आउटपुट वोल्टेज चेंज हो रहा है, तो that is known as drift. Now static error. What is static error? The deviation of true value from desired value or measured value is known as static error. Means E is equal to the difference between measured value and true value. Now dead zone. Now what is dead zone? Dead zone is the largest change of input quantity for which there is no output of the instrument. Means that input का सबसे largest value जिसके बाद output हमको zero मिले, that is known as dead zone. Or in a second point, the maximum change in input for which output is zero, that is known as dead zone. Means input का वह last value जिसके बाद output zero मिले, that is known as dead zone. Okay, you can see in the diagram, this is input line and this is output line. This is the point where output will drop. So this area is known as dead zone and the time between this area is known as dead time. Now threshold. Threshold is the smallest measurable input below which no output change can be identified. Means that इनपुट की वह छोटी से छोटी स्मॉलेस्ट वैल्यू जो किसी भी डिवाइस पे देने के बाद आउटपुट तो मिले बट आउटपुट आइडेंटिफाइड न हो, देन दैट इनपुट वैल्यू इज नोन एज थ्रेशोल्ड वैल्यू. नाउ लीनियरिटी. What is linearity? The maximum deviation of output from idealized straight line or actual readings. Means in this diagram this straight line is actual reading और इस straight line के आसपास जो x लिखे हुए हैं these all are measured value या फिर बोल सकते हैं reading. So straight line से means straight line actual value से इन measured values का इन readings का deviation is known as linearity. Here also mention that linearity is maximum deviation from the reading of x and straight line. Okay, you can understand very clearly in second point. Linearity is simply a measure of maximum deviation of the calibration point from the idealized straight line. Means straight line से जो x values हैं readings हैं मतलब calibration points के बीच का deviation, that is known as linearity. Now stability. What is stability? The ability of an instrument to retain its performance throughout its specified storage life and operating life is called stability. यहाँ retain its performance means performance बनाए रखना. Means किसी भी डिवाइस का मैन्युफैक्चरिंग से लेके जब तक वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, that time period is called stability. मीन्स अगर आपके सेलफोन की बैटरी 1 ईयर चल रही है तो इसकी स्टेबिलिटी कितनी हो गई 1 ईयर. या कोई भी डिवाइस अगर है वो 2 ईयर्स तक अगर परफॉर्मेंस दे रहा है देन उसकी स्टेबिलिटी 2 ईयर्स हो जाएगी. नेक्स्ट रेंज और स्पैन. नाउ व्हाट इज रेंज और स्पैन? द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ ए क्वांटिटी फॉर विच एन इंस्ट्रूमेंट इज डिजाइन टू मेजर. मीन्स दैट किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रीडिंग कैपेसिटी अगर 0 से लेके 100 वोल्ट तक है देन दिस इज द रेंज ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट. मीन्स 0 मिनिमम वैल्यू है एंड मैक्सिमम वैल्यू 100 वोल्ट. मीन्स 100 वोल्ट तक मेजरमेंट कर सकता है, देन दैट इज रेंज और स्पैन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट. Now tolerance. Now what is tolerance? It specifies the maximum allowable deviation of a manufactured device from a mentioned value. Means कोई मैन्युफैक्चरर अगर कोई डिवाइस मैन्युफैक्चर किया है और उसका रेटिंग लिख दिया है कि ये डिवाइस 200 वोल्ट बियर कर सकता है, तो 200 वोल्ट से ज़्यादा भी जितना वैल्यू ये बियर कर सकता है दैट इज नोन एज टॉलरेंस. नाउ बायस. नाउ व्हाट इज बायस? Constant errors which occurs during the measurement of an instrument is called bias. Means अगर errors constant आ रहे हैं, अगर 1.5 आ रहा है तो 1.5 ही error always continue आ रहा है. errors क्या होते हैं? errors ऑलरेडी बता चुका हूँ. अगर एक्चुअल वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू में से
मेजर्ड वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो एरर मालूम चलता है। तो अगर एरर की वैल्यू 1.5 आ रही है और बार बार मेजरमेंट करने के बाद भी 1.5 ही आ रही है वैल्यू अगर एरर की, देन दैट इज बायस। नाउ हिस्टेरेसिस, व्हाट इज हिस्टेरेसिस? हिस्टेरेसिस मीन्स अ लैग बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन अ सिस्टम अपॉन अ चेंज इन डायरेक्शन। नाउ व्हाट इज लैग? लैग क्या है वीडियो के आगे मैं बताऊंगा। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, dynamic characteristics of an instruments are speed of response, dynamic error, lag and fidelity. Now speed of response, what is speed of response? It is defined as the rapidity with which an instrument responds to the changes in the measured quantity. मीन्स अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो किसी भी डिवाइस का आउटपुट अगर चेंज हो रहा है तो कितना जल्दी कितना रैपिडली चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। नाउ सेकंड इज डायनेमिक एरर, द डिफरेंस बिटवीन true value and measured value with no static error. Okay, this is known as dynamic error. Third is lag. Now what is lag? Every system require its own time to respond to the changes in the input. This time is known as lag. या फिर simply we can say that lag means response delay. मीन्स अगर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं तो अगर कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम आप ऑन करते हो तो जितना टाइम लेता है ऑन होने में या फिर कभी कभी हैंग भी करता है, दैट इज नोन एज रिस्पॉन्स डिले या फिर लैग। मीन्स इसी तरह से कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स अगर हमारा है और वो परफॉर्म करने में जितना टाइम लेता है, दैट इज रिस्पॉन्स डिले और लैग। Now last topic is fidelity. It is defined as the degree to which a measurement system is capable of faithfully reproducing the changes in input without any dynamic error. That is known as fidelity. Okay. If you have any confusion or any doubt in this lecture, you can ask your question by commenting on this video. So subscribe my channel to get more videos related to electrical and electronics engineering. Okay. Thanks to all of you.